बस आपका पैसा बढ़ जाता है। ब्राइटर साइड दिखाना होता है। बला की खूबसूरत मीम बन चुका है। ये इतनी रफ्तार में क्यों बोलता है? पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा। गर्लफ्रेंड also used to fluctuate a lot. आपका प्रिंसिपल भी जा सकता है। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. Hello everyone, this is Anmol Gupta, your host for the show Money Ki Baat. And today I have with me Ankit Kumar, who is a friend of mine and who is regional training head of Vedantu. He looks after the South Indian region. So Ankit से मैं बात कर रहा था और Ankit has got some apprehensions about investing in mutual funds. So today we are going to talk about those apprehensions. So welcome Ankit to the show Money Ki Baat. Thank you for having me on board, Anmol. I'm looking forward to having a very good discussion with you. So अंकित, जैसे हम शो के पहले भी बात कर रहे थे, यू हैव सम आइडिया अबाउट म्यूचुअल फंड्स, यू नो हाउ डू दे वर्क, बट स्टिल यू हैव नॉट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो ऐसा क्यों? First of all, Anmol, मेरे को एक बहुत ही basic सा knowledge है when it comes to mutual fund, right? I just know that you just take the money, give it to someone who will invest your money in different stocks or different companies, and बस आपका पैसा बढ़ जाता है. It just compounds, and this is very fascinating for me. This is the basic idea that I have about mutual funds. Coming to your real question, why have I not invested in mutual funds when it sounds very fancy? Anmol, I'll tell you a very funny thing. I have been looking at these ads when I was growing up as a kid. और जो ads मैं देखता था ना, मुझे पता नहीं आपने कौन से ads देखे, पर जो ads मैं देखता था उसमें बहुत ही बला की खूबसूरत लेडी आती थी. एंड द ओनली रीजन, देखो भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं था उस वक्त म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बट द ओनली रीजन आई यूज्ड टू वॉच दोज एड वाज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेडी. और इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होता था दैट आई स्टार्टेड बिकमिंग कंसर्न अबाउट हर मनी. बट जैसे ही खत्म होता था ना ये म्यूचुअल फंड की एड, तो जस्ट खत्म होने से पहले आई डोंट नो, सम कुप्पू स्वामी's voice would come and he will read out something in such a fast pace that the entire mood would be spoiled. और मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये इतनी रफ्तार में क्यों बोलता है. And then one day I sat my father down and asked him about this. Yeah, not about the girl, of course, about this raftar. And then he showed me the line that gets reflected on the screen when the person reads it out. You know what the line is, correct? Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. And the way and the pace in which it is said makes it sound a little scary. And from that day, this line is stuck in my mind. They show you all the good sides of investing in mutual funds. They show you that your money will be safe, it will grow. Last में ना, mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. This is nothing but a big but. You don't know what happens after but, right? This is the reason I always thought before investing in any kind of mutual fund. और अब तक मैं सोच ही रहा हूँ. I think ये ad वालों को ये हटाना चाहिए. ये क्यों डालते हैं? But I think Ankit, as a sales person, you would understand this much better, right? कि पहले आपको किसी प्रोडक्ट का एकदम ब्राइटर साइड दिखाना होता है. यू शो ऑल दी गुड साइड्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसके पीछे, वो कहीं पे एक छोटे से एस्ट्रिक के साथ TNC अप्लाई करके लिख दिया जाता है, राइट? सो दैट्स हाउ यू सेल प्रोडक्ट्स. आई थिंक या एक बहुत ही अच्छा एनालॉजी आपने लिया. या प्लीज गो अहेड. राइट, सो द सेम थिंग हैपेंस विद म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. व्हेन दे आर सेलिंग यू दोज प्रोडक्ट्स, दे विल शो यू वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट, और आखिरी में जो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े छुपाने होते हैं, ढंग से बताने नहीं होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने में, उसको एकदम आखिरी में फर्राटे से बोल दिया जाता है कि या दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, और जो कोई पढ़ता है नहीं एक्चुअली में. पर क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को हमेशा से ये मैंडेटरी करा गया था कि यू हैव टू सी दिस लाइन एट द एंड ऑफ एवरी एडवर्टाइजमेंट. कई प्रोडक्ट्स को तो ये बताना भी ज़रूरी नहीं होता, वो सिर्फ एड में कहीं छोटा सा चिपका देते हैं कि TNC अप्लाई, राइट? But mutual funds always had to say this line explicitly at the end of the advertisement. So एक पूरी जनरेशन के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये लाइन बैठ चुकी है और एक बहुत मीम बन चुका है, बहुत बड़ा जोक बन चुका है ये. इसी के कारण म्यूचुअल फंड्स में अभी काफ़ी लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं. डिस्पाइट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बीइंग एग्जिस्टिंग इन अ कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 30 years, अभी भी लोग इससे काफ़ी डरते हैं. सो अंकित देखो, वो लाइन हटाना डजंट मेक सेंस. व्हाट वुड हेल्प यू इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट लाइन. सो आई जस्ट ब्रीफली टच अपॉन कि उस लाइन का मतलब होता क्या है. अगर उस लाइन का थोड़ा सा ही मतलब तुम समझ जाओगे, देन यूल बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो होता ये है कि एज यू नो, म्यूचुअल फंड्स टेक योर मनी
और तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा लेके अल्टीमेटली वो पैसा या तो स्टॉक्स में डालते हैं या फिर दूसरी जगह होती है पैसा डालने की बॉन्ड्स. बॉन्ड्स इज समथिंग लाइक फिक्स डिपॉजिट. व्हेन यू पुट योर मनी इन बैंक्स एज फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करते हैं कि यार साल भर बाद आना और 6% इंटरेस्ट लेके चला जाना अपने प्रिंसिपल के साथ. सो बॉन्ड्स इज अ सिमिलर थिंग. यू गिव योर मनी टू द कंपनीज इंस्टेड ऑफ बैंक्स. तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपसे आपका पैसा लेते हैं और आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लेंड कर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उधार दे देते हैं. और वो कंपनीज़ क्या बोलती है कि ठीक है हम कुछ टाइम बाद आपको इंटरेस्ट के साथ ही प्रिंसिपल वापस कर देंगे. और जो बॉन्ड्स होते हैं टिपिकली आपकी फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे. तो ये हो गए बॉन्ड्स वाले म्यूचुअल फंड. सो दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं मोटे मोटे तौर पे. एक म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. अब अगर हम ये समझ जाएं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स की क्या रिस्क है और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स की क्या रिस्क है, अगर हम ये समझ जाते हैं तो वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन. स्टॉक्स के साथ क्या रिस्क होती है, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपने देखा ही होगा कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, कभी भी फ्लक्चुएट होता रहता है. कोई भी न्यूज़ आती है किसी कंपनी के बारे में, उसकी स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे हो जाती है. सो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट्स अ लॉट. तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होगा उस हिसाब से आपका पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा. अब बॉन्ड के साथ क्या रिस्क होती है, बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट तो फिक्स होता है, जैसे एफडी में इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया जाता है. बट जिस भी कंपनी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है वो कंपनी अगर बंद हो जाए या कंपनी लॉस में चले जाए तो कंपनी आपको इंटरेस्ट तो क्या प्रिंसिपल भी वापस करने की पोजीशन में नहीं रहेगी. एज लॉन्ग एज द कंपनी जिसका आपने बॉन्ड खरीदा है वो सही चल रही है, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट आता रहेगा. बट जिस दिन वो कंपनी डूबी आपका प्रिंसिपल भी जा सकता है. एंड दिस हैज़ हैपेंड. लास्ट 1.5 साल में हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ म्यूचुअल फंड्स, जहाँ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स का भी पैसा डूबा है. एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल डूबा है उसमें. प्रिंसिपल भी डूब गया. एक वर्ड मुझे बहुत कैची लगा यहाँ पे, द स्टॉक वैल्यूज फ्लक्चुएट अ लॉट, राइट? यू नो व्हाट, एक फनी चीज बताऊं, माय एक्स गर्लफ्रेंड आल्सो यूज्ड टू फ्लक्चुएट अ लॉट. इतना फ्लक्चुएट किया ना उसने दैट आई एम नोवेयर इन द पिक्चर. स्टॉक्स और उसका कुछ तो रिलेशन हो गया. So Ankit, jokes apart, you were telling me about the time when your father invested and the time when your mother invested some money somewhere, right? So why don't you just share that story with us? Yeah, in fact, I had shared it with you the last time we met. We had a conversation, right? It's very funny. It's very funny. और मैं फिर से बताऊंगा. If at all you have forgotten this, it's a real story, by the way. Okay, and it's a contrasting story. My mother is a huge movie buff. हाय गाइस, अंकित की पूरी स्टोरी जानने के लिए और टू नो मोर अबाउट हाउ टू टैकल द म्यूचुअल फंड रिस्क, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून टू मनी की बात. द नेक्स्ट एपिसोड विल रिलीज ऑन Sunday 21st of June.